بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ آج 9 مارچ 2023 اور جمعرات کا دن ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ضلع قصور کے پولیس تھانہ کنگن پور کی ایک کرائم سٹوری لے کر آ رہے ہیں، جس میں ایک بدبخت ملزم نے اپنے ہی بہنوئی کو اندھا دھند فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ اپنی بہن سے اس کا سہاگ چھین لیا، اپنی بہن کو بیوہ کر دیا اور اپنے 4 بھانجوں کو یتیم کر دیا۔ لیکن کیا ایسا مسئلہ تھا، کون سے ایسا غصہ تھا کہ ملزم کو اپنے بہنوئی کو ہی موت کے گھاٹ اتارنا پڑا؟ اور پھر ملزم اپنے بہنوئی کے قتل ہو جانے کے بعد اس کی لاش پر بھی گولیاں کیوں برساتا رہا؟ کون سا ایسا انتقام تھا، کون سے ایسے انتقام کی آگ تھی جو اپنے بہنوئی کے قتل ہونے کے بعد بھی اس کی ٹھنڈی نہ ہوئی؟ اور پھر ملزم اپنے بہنوئی کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا، اور پھر کیوں اس نے اپنے خلاف اپنے ہی اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا؟ کیا اس طرح وہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ اور پھر ملزم نے اپنے جرم کا کون سے ایسا نشان چھوڑا تھا کہ وہ پولیس کے شکنجے میں آ گیا؟ اور پھر پولیس کس طرح ملزم تک پہنچی؟ کس طرح اس نے یہ اندھا قتل ٹریس کیا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس کرائم سٹوری میں۔ جی ناظرین، 35-36 سالہ ندیم اختر موضع ڈٹے تحصیل چونیاں ضلع قصور کا رہائشی تھا۔ اس نے گاؤں میں ہی ایک پرچون کی دکان بنا رکھی تھی جہاں پر وہ ڈاکٹری کا کام بھی کرتا تھا۔ مورخہ 19 جنوری کو رات 9 بجے کے قریب وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر الہ آباد سے کھانا کھا کر اپنے گھر واپس ڈٹے آ رہا تھا کہ راستے میں اسے نامعلوم ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کو پیچھے سے تقریباً 8 گولیاں ماری گئی تھیں۔ پولیس تھانہ کنگن پور نے مقتول کے بھائی نصیر احمد کی رپورٹ پر نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے اس اندھے قتل کی تفتیش شروع کر دی۔ اس حوالے سے پولیس ایک سکول کے کیمرے چیک کر رہی تھی کہ اس دوران ایک نامعلوم شخص سکول کے چوکیدار کے پاس گیا اور اس کو دھمکی دی کہ اگر تم لوگوں نے پولیس کو کیمرے چیک کروائے تو تمہارا حشر بھی مقتول ڈاکٹر ندیم اختر جیسا ہی ہوگا۔ پولیس تھانہ کنگن پور ابھی تفتیش کر ہی رہی تھی کہ مقتول ڈاکٹر ندیم اختر کے ایک بہنوئی محمد آصف نے مورخہ 25 جنوری کو پولیس تھانہ الہ آباد میں مقدمہ درج کروا دیا کہ اس کے بھائی 28-29 سالہ محمد سجاد اور اس کے ملازم تنویر کو مورخہ 24 جنوری کو نامعلوم ملزمان نے اغوا کر لیا، جس سے پولیس کو شک گزرا اور انہوں نے مقتول کے بہنوئی سجاد کو اس کے شاگرد تنویر سمیت حراست میں لیا تو سجاد نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا بہنوئی مقتول ڈاکٹر ندیم اختر ایک بد کردار شخص تھا۔ اس کی بہن اور اپنی بیوی مریم بی بی کو آئے روز بلا وجہ تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور اپنی ڈاکٹری کی دکان کی آڑ میں مختلف لڑکیوں سے حرام کاری بھی کرتا تھا۔ ملزم سجاد نے دبے لفظوں میں یہ بھی بتایا کہ مقتول ان کے گھر کی دیگر لڑکیوں پر بھی بری نظر رکھتا تھا اور ان کی عزت پامال کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا، جس سے اس کو متعدد بار منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا، جس پر اس نے مجبور ہو کر اور تنگ آ کر اپنے شاگرد تنویر کے ساتھ مل کر اس کو اندھا دھند فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سجاد۔ آپ کا نام، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سیلنگ کا کام کرتے ہیں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 30 سال۔ 30 سال عمر ہے آپ کی۔ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی شادی ہوئی۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے پاس ایک بیٹی۔ ایک بیٹی ہے۔ تو جو آپ جس کو مارا ہے آپ نے، وہ آپ کا کیا لگتا تھا؟ وہ میرا بہن تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ندیم۔ ندیم۔ تو اس کے کتنے بچے ہیں؟ اس کے 4 بچے۔ اس کے 4 بچے ہیں۔ ان کی عمر کتنی ہیں؟ اس کے بڑے ہوئے بچے کی عمر ہے تقریباً 12-13 سال۔ اچھا، باقی اس سے چھوٹے۔ کتنے بیٹے ہیں کتنے بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹے ہی ہیں، بیٹی نہیں اس کے پاس۔ وہ کیا کام کرتا تھا؟ وہ ڈاکٹری کا بھی کام کرتا تھا، وہ کریانے کی دکان بنائی ہوئی تھی۔ اچھا، تو کیا واقعہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ مطلب کہ شراب پی کے زنا وغیرہ کرتا تھا اور میری سسٹر جو ہے اس کے ساتھ لڑتی تھی، مطلب اس کام سے روکنے کے لیے۔ تو
वो तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं यही काम चल रहा है। उसकी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए हैं, तो 8-10 साल से तकरीबन यही काम कर रहा है, ज़िना कर दिया। तो बच्चों पे भी तशद्दुद करता था। बाजी मेरी बेगम, बाजी जब रोकती थी उसको तशद्दुद ही करना था उसने। तो वो कभी हथियार, मेरे पास जो पिस्टल था ना जिससे मैंने उससे मारा है, वो मुझसे कभी कभी ले आता था। तो बाजी को भी डराता था कि मतलब कि अपने भाइयों को मतलब ये मतलब नहीं बताना आपने। उसी पिस्टल से? जी, उसी पिस्टल से, जो जिस पिस्टल से मैंने उसको मारा है उसी पिस्टल से मतलब बाजी को धमकाता था। और बाजी लोग मुझे सब कुछ बता रहे थे कि मैं टीम से लड़ता था, मतलब ये सब कुछ मतलब जायज़ नहीं है। तो डॉक्टरी का काम करता था, दुकान में मतलब कि बच्चियाँ आती थी दवाई लेने के लिए, तो उनके साथ मतलब देखभाल करना, ज़िना वगैरह करना। तो हमसे ये सब कुछ बात मतलब कि हमारी सिस्टर ने उसको रंगे हाथों को पकड़ा काफ़ी दफ़ा नंगे को लड़कियों के साथ। तो जब औरत को मतलब कि या अपने आदमी को पता लग गया कि ये वो है मतलब ज़िनाकारी करता है, तो वो नज़र ही रखती है फिर उस पर, मतलब जब भी वो करेगा। तो मतलब काफ़ी बार मतलब कि घर भी नहीं सोता था, मकान दिया, मकान एक और बनाया हुआ था उसने। कहाँ? वो जहाँ दुकान है ना वहाँ पे मकान बनाया हुआ है। मतलब दुकान काफी कितनी दूर है? वो तकरीबन एक किला तकरीबन एक नजदीक है, घर के पास ही है? नज़दीक ही। अच्छा। तो वहाँ पे उसने मतलब सोने के लिए सब कुछ मतलब याशी के लिए रखा हुआ था कि वहाँ मैंने सोना है, मतलब घर में ना भी जाऊँगा। बाजी से लड़ पड़ता था ना, तो मतलब वहाँ पे रहता था ज़्यादा, तो मतलब घर में जाना पड़ेगा। वहाँ पे उसको जब एक अयाश बंदे को जब वहाँ पे सब कुछ मिल जाना है तो उसने तो घर जाके क्या करना बच्चों को। तो वो ऐसे ही चलता रहा कि हम भी समझाते रहे उसको। बड़े मतलब काफ़ी दफ़ा लड़ाई हुई, हमारी सिस्टर को मारा, वो रूठ के चली जाती थी। तो बड़े में मतलब काफ़ी दफ़ा बैठ के मतलब रोका भी, सब कुछ हुआ। हमारे बड़ों को सब कुछ ही पता है, मतलब जो आज तक चलता रहा है, वो रिश्तेदारियों में जो कैसे कैसे खलल डालता रहा है। तो इसकी भूल किसी को भी नहीं है। जो कुछ मैंने किया है ना, मतलब कि अनजाने में किया, जो मैंने जानबूझ के किया है। हम इतने मजबूर हो गए थे उसको मारने के लिए कि हम बस मतलब कि मजबूरी में किया है जो ये कुछ किया है। ऐसी क्या मजबूरी थी? लड़ाई झगड़ों तो होते रहते हैं यार। मतलब कि तो जब एक इंसान से इतनी लड़की का फौज नहीं है, रोकी जाए फिर भी मतलब कि वो एक ही काम मतलब कि लगा रहे, तशद्दुद करना है या मतलब कि ज़िनाकारी करनी है, तो हमसे बस ये बर्दाश्त नहीं होता। रोज़ रोज़ की बातें मतलब कि हम सुनने से या रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ सुनने से हमें उसको जो आपने जिनों की बात की है, हम क्या इसका मतलब ये है कि वो घर के दीगर जो खवातीन की उनकी इज्जत पर माल करने की कोशिश करता था? जी, ये भी गुस्सा था? जी, ये सबसे ज़्यादा गुस्सा यही था कि मतलब कि बच्चियों को, किसी की भी बच्चियाँ तो उनकी इज्जत का माल करना उसको ये हक नहीं। अयाशी के अलावा मतलब वो घर को माफ नहीं करता था? नहीं माफ करता था। तो उस उसको काफ़ी दफ़ा मतलब कि बच्चियों को टच भी किया, किसी बच्ची ने थप्पड़ मारा उसको मुंह पे। वो मतलब अक्सर बच्चियाँ घर जाके बाजी को भी बता देती थी कि मतलब आपके हस्बैंड ने आज मैं दुकान पे दवाई लेने के लिए गई या ये लेने के लिए गई, तो मतलब कि उसने मुझे ये छेड़ा है, आज उसने आज ये बात की। वो बाजी को भी आके बता देते। और बाजी जो है उसको अगर कहते थे कि मतलब आज फलानी बच्ची को मतलब तुमने ऐसे किया, तो वो बाजी के साथ लड़ता था। जो मदई है वो भी मेरा बहन हुई है, तो उसने मतलब उसको लोगों को सब कुछ ही उसके पता है कारनामा का, जो कुछ जो वो करता था। इस वक्त वो पर्दा डालें या जो भी करें तो वो उनका बनता भी है पर्दा डालने का। तो बाकी जो हमने किया है वो मजबूरी में किया है। तो कोई भी शौक से अपने भाई को नहीं मरता, तो हमने जो भी किया मजबूरी में किया। तो अफसोस है आपको? जी, बहुत अफसोस है उसको मारने का। तो बस ये जो काम किया है हमने मजबूरी में किया था। कोई भी अपने बहनोई को शौक से तो मारता नहीं है, ना हमारा कोई उससे ज़मीनी कोई मतलब इख्तलाफात हैं, ना कोई ऐसी कोई बात है। तो बस हमने मतलब अपनी सिस्टर के लिए मतलब कि वो रोज़ जुल्म पे जुल्म करता रहा, हमारी बस बर्दाश्त से बाहर हो गया था, तो हमने उसको खत्म कर दिया। ये तो क्या ये आपने हल सही निकाला है कि देखे ना आपके भांजे हैं भांजियां हैं, पहले दिन बात सुनो ना प्लीज। आपके भांजे हैं भांजियां हैं, उनको यकीन कर दिया, बहन का स्वाग छीन लिया, उसको बेवा कर दिया, जैसा भी था हुआ है, तो आपका बहन ही था ना, तो उसका ये हाल सही था आपने? बहरहाल मेरे कागजों में तो ये ठीक था, उसका और क्या हल हो सकता था।
बहन को तलाक ले लेते। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी लड़की को तलाक नहीं हुई है, तो हम उसकी तलाक ले लेते। अब उसको बेवा कर देंगे, उसको ठीक है। तलाक का ठप्पा रहने तो इसे ये ठीक है। इस पे आपको अफसोस इसको नहीं है? नहीं अफसोस नहीं है, सबक मिलना चाहिए। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है, तबाह हो गई है। मैंने उसकी जिंदगी नहीं, वो खुद नहीं मरा, हम भी मार गए हैं उसके साथ। तो उसको नहीं तबाह किया, हमने खुद को भी तबाह कर लिया के साथ। तो ऐसे सबक भी तो लोगों को मिलना चाहिए कि शादी करने के बावजूद, एक पसंद की फिर शादी करने के बावजूद पैसे ना से बाहर का तो मतलब कि ऐसा काम करने, ज़िना करेंगे या बच्चियों की तो मार कर लेंगे, तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं। उसने हुआ क्या हुआ था जिससे मारा आपने? उस दिन मतलब कि वो खाने के लिए घूमर आया था हमारे किसके साथ, साथ? मेरे भाई के साथ ही आया था। उस दिन भी मतलब कि बाजी को उसने 2 चपेड़े मारी, तो मतलब मेरे आपके भाई मुझे लेके नहीं जा रहे, उसकी बाइक खराब थी। तो हमारा कोई ऐसा इरादा भी नहीं था कि मतलब उसको आज मारे। हम तो प्लानिंग कोई नहीं थी? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी। अच्छा। इसको मारने की कोई प्लानिंग नहीं थी। तो जिस दिन जब शाम हुई तो मतलब कि उसने छोटे भाई को मतलब मैंने कहा उसको लेके आओ नदीम को। तो छोटे भाई को भी जब नहीं आपकी पता था। बहन ने आपको बताया है किसने मुझे मारा है, तब आपने कहा कि क्या उसको? हाँ, तब गुस्सा आ गया आपको? तब गुस्सा आ गया, तब कि प्लानिंग शुरू हो गया? हाँ, मैंने कहा फिर मतलब उस तरह बाजी से कॉल का ख़त्म करके तो फिर इस मतलब अपने शिगिर्द को कॉल की। इसका नाम क्या है? इसका नाम तनवीर है। अच्छा। तो इसको कॉल की, मैंने कहा इसको मारना है, आज नहीं छोड़ना। या उसने बाहर आया है, अगर खाना दे दिया या गर्म चाय दे दी है, वो उसके बाजी के पाँव पे भी गिरा देनी, जो कप पकड़ के उसके पाँव पे ही तोड़ देना। तशद्दुद करना है? जी, तशद्दुद करना। अच्छा, खाना खाने वो आ गया तो और फिर खाना खाने आ गया, जब मैंने इसको कॉल पहले कर दी थी कि आ जाओ, हम इसको मारना है। आसफ को नहीं पता आपके भाई को? नहीं, आसफ को नहीं, इस बात का इल्म था कि मतलब कि हम ऐसे ही रहते थे। अच्छा। तो खाना खाया हमने, खाना खाने के उधर बात की आपने कि मेरी बहन को मारा क्यों आपने? नहीं, वहाँ बैठ के हमारी कोई बात कोई बात नहीं? कोई बात नहीं है, वहाँ बैठे रहे, बस वैसे गपशप करते रहे, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो खाना खा लिया? खाने खाने रात के का बाद- टाइम था? जी, शाम का टाइम था, तकरीबन 8 सवा 8 का टाइम। अच्छा, खाना खा लिया फिर? तो खाना खाने के बाद हम वहाँ से जो है निकले हैं। छोटा भाई जो है उसके पास बाइक थी मेरी, तो वो घर को चला गया। मैंने कहा मैं तनवीर को छोड़ के आता हूँ। चलो, कहता चलो ठीक है, तुम आ जाना। तो उसको नहीं पता था हमारा जो भी नहीं, वापसी पे जब आप गए हैं उसके साथ क्यों गए थे फिर आप? तो बस उस दिन उसकी किस्मत हरी हुई थी। उसने हमें मजबूर किया कि मतलब मुझे छोड़ के आओ, बार बार यही कहता रहा। मोटरसाइकिल आपकी थी? जी, अच्छा, मोटरसाइकिल फिर मेरी। कौन कौन बैठा उस पे? मैं और तनवीर। कौन चला रहा था मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल मैं चला रहा आप था, चला रहे थे, पीछे कौन था आपके? वो मकतूब बैठा था और उसके पीछे आपका पीछे। शिगिर्द? जी, अच्छा, फिर तो रास्ते में बात हुई आपकी? रास्ते में फिर वही लड़ाई आपने बात की? जी, मतलब उसी सिलसिले में की जो मतलब कि उसने आज उस दिन बाजी को चपेड़े मारी। तो उसने मुझे 2 गाली निकाली, फिर एक गाली मैंने उसको निकाली और मैंने बाइक साइड पर लगा के तो तनवीर को कहा कि मतलब आज मतलब मारेंगे इसे। तो इसको मैंने इशारा किया तो इसने फायर मार दी। जैसे मैं बाइक से उतरा, कितने फायर मारे इसने? तो ये तकरीबन 5-6 होंगे इसके। और जब वो मतलब कि फोत हो गया था उसके बाद मैंने फायर मारा है। इतना गुस्सा था आपको? जी, अच्छा, फिर आपने पर्चा दर्ज करवाया था अपने अखबार का, ये क्या चक्कर था? ये जब हम मतलब कि पता लगा है ना मेरा कि मतलब कि ये काम इसने किया है, मेरे तो घर वालों को भी नहीं तो पता कि ये काम इसने किया है। तो मेरे भागने के बाद मतलब घर वालों को नहीं पता था कि मतलब ये क्यों मतलब अब गया है या क्या वजह हुई है। तो उन्होंने मतलब कि मेरे अगवा का पर्चा करवा दिया कि शायद इन्होंने मेरे घर वालों। अच्छा, आपने घर वालों को बताया नहीं था? यानी कि आपने घर वालों को बताया नहीं था, अब गायब हो गया आप? जी, तो घर वालों को नहीं पता था आप कहाँ पे हैं? नहीं, घर वालों मैंने तो नंबर उन्होंने फिर अखबार का पर्चा करा दिया आपका? ठीक हो हाँ, गया। मैंने अच्छा, नंबर भी बंद कर बंद दिए कर दिया, थे। ठीक हो गया। मतलब सब कुछ बंद कर दिया था, इसको भी साथ ले लिया था ठीक हो गया। ताकि इसको मतलब के नुकसान ना करे। कि इसका पता मतलब वीडियो में लग गया तो इसको नुकसान ना करे। तो इसको भी मैं साथ ही ले गया था। अच्छा, आप दोनों बहनें दोनों भाइयों से शादीशुदा है? जी, दोनों भाई। तो फिर आपने 2 घर पर बात कर दी है यार। 2 नहीं है, काफी घर पर, मेरा खुद का घर पर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तनवीर। अच्छा, तो आपने ये कत्ल कर दिया जाके, ना आपका कोई तलब था, ना वास्ता था, ना दुश्मनी थी आपकी, ना कोई रंज था, आपने कोई काम किया? सर, अगर बात सोची जाए ना तो आज 7 दिन पहले मुझे सर ने सभी कुछ बताया कि वो ऐसे ऐसे लड़कियों के साथ ना करता है, ऐसे ऐसे करता है। तो देखा जाए तो मैंने भी सर से कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बहन पे भी तजदश करता है, इसलिए मैं भी साथ दूँगा।
बेटा आप अफसोस नहीं हो आप जेल जाएंगे, शायद मौत हो सकती है आपको? अभी बहुत अफसोस हो रहा है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला कसूर के थाना कंगनपुर में। हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर कुर्बान अली साहब से और उनसे पूछेंगे उस बदबख्त मुलज़म के बारे में जिसने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया, जिसने अपनी बहन का सुहाग छीन लिया, अपनी बहन को बेवा कर दिया। जी कुर्बान साहब, आप हमें ये बताएं कि जब ये वक़ुआ हुआ और आपको कॉल मौसूल हुई, कॉल मौसूल होने के बाद आपने क्या कार्रवाई की? मैं हस्बे मामूल साबक गश्त पर मामूर था, पुल गारे मौजूद था कि 15 पर कॉल आई कि कस नामालूम जो कि मरा पड़ा है मोटरसाइकिल पर, बाद रकबा टूटे। हाँ जी। तो मैं वहाँ पहुँचा, SHO साहब भी पहुँच गए। तो इसी दौरान लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। लाश की शनाख्त हो गई। तो उसके क्या शनाख्त हुई? कि ये डॉक्टर नदीम नामी शख्स है जी, जो टूटे का ही रहने वाला है। परचून की दुकान है, साथ ये अताई डॉक्टर जो देहातों में होते हैं उस टाइप का काम भी करता था। तो इसके ज़ख्मों से अंदाज़ा लगाया कम से कम 8 फायर थे इसके जिस्म पर। 8 फायर? हाँ जी। ज़ख्मों से अंदाज़ा लगाया कि ये कोई डकैती वगैरह नहीं है, ये तो मर्डर है, तो किसी ने कोई गैरत की वजह से किया है। तो मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश मेरे सुपुर्द हो गई। मुकदमा नामालूम मुलज़मान के खिलाफ हुआ? नामालूम मुलज़मान के बताइए खिलाफ। कौन बना उसका? मकतूल का भाई बना। अच्छा जी। तो फिर हमने उस रोड पर कोई कैमरे शैमरे चेक करने की कोशिश की, तो उधर अलाइड स्कूल है, उधर कैमरे नस्ब थे। उधर जब हम चेक कर रहे हैं, अंदर बैठे, तो बाहर चौकीदार को एक कस नामालूम आया जिसने कहा कि ये कैमरे मत चेक करवाओ इनको, चेक मत कराओ, वरना आपके साथ भी डॉक्टर नदीम वाला इस अंजाम होगा। अच्छा, थ्रेट किया किसी हाँ ने? जी। चौकीदार ने जाकर अंदर हमें बताया, तो हम बाहर निकले तो वो भाग चुका था। तो हमें शक पड़ गया कि ये उसके मकतूल के सालों ने ही इसको भेजा होगा। तो इसी दौरान जो सज्जाद था साला इसका जी, मकतूल का, तो उसने अपने ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई कि उसे किसी नामालूम ने अगवा कर लिया है। कहाँ दर्ज कराई? करीब वाले थाने इलाहाबाद थाना में। इलाहाबाद में। उससे एक कत्ल से कितने दिन बाद? चंद दिन बाद। अच्छा जी। तो हमारा शक पक में तब्दील हो गया। मुद्दई से बदस्तूर राब्ते में थे, तो कोशिश करके हमने इनको पकड़ लिया। तो दरियाफ्त पर इसने बतलाया कि मेरा बहनोई जो था वो मेरी हमशीरा पर बहुत जुल्म करता था, मारता पीटता था उसे। चंद दिन पहले उसने मारा पीटा तो वो फैसलाबाद मेरे ससुराल के पास चली गई। 3-4 दिन हमें पता ही न चला, फिर हम उधर से जाकर लाए। तो और दीगर औरतें भी, लड़कियां वो यूज़ करता था लाकर, तो मेरी हमशीरा ने भी उसको कई दफ़ा पकड़ लिया था। तो इन चीज़ों में बर्दाश्त ना हुआ। हमने शाम को खाना उस दिन इकट्ठा ही खाया है, ठींग और मछली वगैरह। ये उसने बताया मुलज़म ने? तो हम उसे वापस गांव छोड़ने आ रहे थे, तो रास्ते में मैंने और मेरा एक शागिर्द था तनवीर, हम दोनों ने मिलकर उसे फायर मार कर कत्ल और कर ये दिया। तनवीर, बाद में आपको कैसे पता चला था कि कैमरों वाले बंदे को, चौकीदार को किसने जाकर थ्रेट किया था? फिर जब सजाद पकड़ा गया तो उसने बतलाया कि मैंने उसे तनवीर को भेजा था उधर स्कूल, अपने शागिर्द को। ये सीलिंग का काम करते हैं। सीलिंग का? जी। तो ऐसे अब फिर रिमांड वापसी जिसे मैं इन्होंने इतराफ़ कर लिया है, तो रिमांड लिया हुआ है। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में आला कत्ल बरामद करके मुलजमान को सही गुनहगार पाकर चलान अदालत किया जाएगा। अच्छा, ये मुलज़म दोनों ही हैं? दोनों ही। और इन दोनों हैं, और इन मशवरे में इनकी हमशीरा है मरियम बीबी, जिसको हम जुडिशल भिजवा चुके हैं। अच्छा, उसको नामजद किया उन्होंने? हाँ किया है, ततीमा बयान जो दिया है उसमें नामजद किया है। इसकी बहन मतलब मुलज़म की बहन है एक? मुलज़म की बहन, जो उसको जेल भेज दिया? मकतूल की बीवी। मकतूल की बीवी? अच्छा, उसको, अच्छा, मकतूल की बीवी भी शामिल है? हाँ जी। उन्होंने शामिल किया है मकतूल की बीवी को भी? जी। अच्छा, मकतूल की जो बीवी है जी, वो भी नामजद कर दिया उन्होंने? नामजद कर, उसको आपने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया? है। अच्छा, उसका नाम क्या है? मरियम बीबी। मरियम बीबी। तो बाकी ये दोनों मुलज़म बा रिमांड वापसी जिस समय हमारे पास, तो रिमांड लिया हुआ है। 1-2 दिन में इनकी रिकवरी हो जाएगी आला कत्ल की, तो गुनहगार पाकर चलान कर दिया जाएगा। जी, आप मुतमईन पूरी तफ्तीश से? इंशाअल्लाह 100% तफ्तीश मेरी सही है। जी नाज़रीन,
آپ نے ملزم سجاد اور انویسٹیگیشن آفیسر قربان علی کی گفتگو سنی اور دیکھی۔ ملزم نے مقتول پر یعنی اپنے بہنوئی پر انتہائی سنگین قسم کے غیر اخلاقی الزامات عائد کیے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی مدعی مقدمہ نصیر احمد سے، جو مقتول ڈاکٹر ندیم اختر کا بھائی ہے، اس نے ان تمام سنگین الزامات کی سختی سے تردید کی اور ان الزامات کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بھی ملزم اور اس کی فیملی پر انتہائی سنگین قسم کے غیر اخلاقی الزامات عائد کیے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بھابھی یعنی مقتول کی بیوی کا چال چلن درست نہیں تھا، اس نے بعض لوگوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے جس سے مقتول اس کو منع کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ملزم نے مقتول سے یعنی سالے نے اپنے بہنوئی سے 10-12 لاکھ روپیہ ادھار لے رکھا تھا کاروبار وغیرہ کرنے کے لیے، اور ان دنوں مقتول اپنے سالے یعنی ملزم سجاد سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ مدعی مقدمہ نصیر احمد نے مزید بتایا کہ جس پستول سے ملزم نے اپنے بہنوئی کو قتل کیا ہے، وہ پستول مقتول کی بیوی مریم بی بی نے ہی اپنے بھائی کو دیا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر مریم بی بی نے اپنے بھائی سے مل کر اپنے خاوند کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے بھائی کے ہاتھوں اس کا قتل کروا دیا۔ تاہم ملزم اور مقتول فیملی سے ایک دوسرے پر لگائے گئے سنگین الزامات کس کے سچے ہیں کس کے جھوٹے ہیں، یہ دونوں فیملیز ہی جانتی ہیں، لیکن یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ایک قتل سے کم از کم 4 گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بٹی کو اجازت دیجیے میری جنگ یوٹیوب چینل سے۔ اللہ حافظ۔